Hello everyone and good morning. In the previous lecture of chemical bonding, lecture number 7, you know that we have discussed the formation of methane molecule on the basis of the process that is known as a hybridization. So in the same way now we have to see here the formation of ammonia molecule. Students, you should know one thing here. In case of methane molecule as well as ammonia molecule as well as water molecule, we have the same type of, we have here sp3 type of hybridization. You know that it's a process of mixing and recasting of one s orbital and 3p orbitals having nearly the same energy to form 4 sp3 hybrid orbitals with equivalent energy, maximum symmetry in the space and definite orientation in the space. So for ammonia molecule also we have here the same kind of type of the process that is known as a sp3 hybridization. Now let's see how the formation of ammonia molecule takes place. The same step we have to follow as we follow in case of methane molecule. तो आपको पता है यहाँ पे in case of ammonia molecule, nitrogen atom is present at the center. Yes, you know that atomic number of nitrogen is 7, so it has the configuration 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 1, 1, 1. You know that we have to fill these electrons in accordance with the Hertz rule. So here the first step we have to write first of all formation of excited state. So here first of all we have to write here ground state electronic configuration for nitrogen. So 1s के लिए यहाँ पे है एक box, then for 2s again 1 and for 2p then the presence of 3 boxes, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 1, 1 and 1. So here 1 and 2, 1 and 2, 1, 1, 1 electrons will be present in the 2px and 2py and 2pz orbitals. So ये यहाँ पे होता है ground state. आपको पता है as per the valence bond theory, if the number of electrons which are unpaired not equal to valency, then only one of the electron from the 2s can jump in the vacant orbital. But in case of nitrogen here we can say the valency of nitrogen is 3 and you can see now there is the presence of 3 unpaired electrons. So here there is no need for this step here. So I will write here as the number of unpaired electrons are equal to valency. Therefore, no need for excitation of इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये स्टेप की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड
आपको याद होगा इन केस ऑफ कार्बन देयर वर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन वाज 4, आई मीन इज 4, दैट्स व्हाई हियर। तो ये हो गया यहाँ पे पहला स्टेप। देन द सेकंड स्टेप, यू नो दैट द सेकंड स्टेप इज नथिंग बट द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, mixing and recasting of atomic orbitals. You know that ये भी एग्जांपल है sp3 का, तो यहाँ पे 1s का कोई यहाँ पे पार्ट नहीं होगा, बट 1 2s ऑर्बिटल and 3 2p orbitals, they will mix up together to form 4 sp3 hybrid orbitals. So here we can say here hybridized state, we have to write like this. आपको पता है यहाँ पे 1s का कोई पार्ट नहीं होगा, तो मैं इसको रखता हूं साइड में, लेकिन ये जो रिमेनिंग है ये 2s और ये है बाकी 2p, मतलब ये जो रहेंगे ऑर्बिटल्स ये हो जाएंगे मिक्सअप. And now you can see the same number of electrons we have to write here also. And now you can check here. There is the presence of yes 4. ये है वो 4 sp3 hybrid orbitals. जिसमें से अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जानते हो क्या है? ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये यहाँ पे क्या है? ये है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So in this way here the second step will take place, that we can say here yes nothing but the mixing and recasting of atomic orbitals. तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे. Yes, how many? Is the formation of 4 sp3 hybrid orbitals will take place. Then the third step here is nothing but the orientation of atomic orbitals, I mean this hybrid orbitals, as well as I will write here orbital overlap. दोनों स्टेप को हम लोग यहाँ पे करते हैं मर्ज, ऑर्बिटल ओवरलैप. यस, तो अभी आपको यहाँ पे पता है ये जो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे 4 sp3 hybrid orbitals, they are having nearly the same energy. I will say they are having equivalent amount of energy, and they will also orient in such a way that there should be minimum repulsion. तो ये यहाँ पे जो फॉर्म हो गए ये 4 sp3 hybrid orbitals, ये अपने आप को कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे ताकि इनमें कम से कम रिपल्शन हो और ज्यादा होगी यहाँ पे स्टेबिलिटी. तो इन दिस वे वी हैव टू राइट. आता इथे बघा हे जे आपण दाखवलेले आहे हे आहे लोन पेयर. सो वी हैव टू शो दिस ऑर्बिटल्स राइट हियर 1 2 3 and 4. आउट ऑफ दिस ये है लोन पेयर वाला, बाकी ये तो है sp3 हाइब्रिड, ये भी है यहाँ पे sp3 हाइब्रिड, ये भी है यहाँ पे sp3 हाइब्रिड, और ये भी है यहाँ पे sp3 हाइब्रिड. लेकिन देखिएगा यहाँ पे ये क्या है? ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी तीनों जो है ये है यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में नहीं होंगे पार्टिसिपेट. और ये बाकी जो तीनों है ये है बॉन्डिंग, आई मीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इस तरीके से ये जो 4 रहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को एडजस्ट करेंगे इन दिस वे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर. अभी हमको दिखाना है यहाँ पे किस तरीके से होता है ओवरलैप. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल की. तो यू नो दैट देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ हियर हाइड्रोजन एटम, and you know that it is nothing but a spherical in shape. For hydrogen we can write like this. तो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? Yes, hydrogen atom is having 1s1 configuration and there is the presence of 3 hydrogen atoms. तो ये है नाइट्रोजन एटम, ये सेंटर वाला, जिसके जो अभी है यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है ना?
और अभी इनके अभी ये जो है यहाँ पे तीन एटम्स हाइड्रोजन के, मतलब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनमें अभी यहाँ पे हो जाएगा ओवरलैप. नाउ यू कैन सी हियर हाउ द ओवरलैप विल टेक प्लेस. ये है लोन पेयर, बाकी ये तो है आपको पता है. ये अभी है बॉन्ड पेयर. सो अभी शो हियर लोन पेयर. अब यहाँ पे हम दिखाएंगे इनका ओवरलैप. एंड नाउ यू कैन सी दिस इज नथिंग बट द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये जो ओवरलैप है ये है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये है बीच में नाइट्रोजन. तो ये जो ओवरलैप का नाम है ये रहेगा sp3s. ये है sp3s ओवरलैप. ये भी है sp3s ओवरलैप. Remember students, this overlap will take place along the axis. So here we can say this overlap is nothing but the coaxial overlap. That's why there is a formation of strong sigma bond will take place. तो यहाँ पे तीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड. तो ये जो है ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगी. अभी ये हमने लिखा है स्टेप नंबर 3. ठीक है. नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ स्टेप की. और जो फोर्थ स्टेप यहाँ पे होता है आपको पता है ये होता है बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री. जब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की तो आपको पता है द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अमोनिया इट शुड बी इक्वल टू 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स. बट इन केस ऑफ अमोनिया the bond angle is found to be only 107 degrees and 18 minutes only. ये है इसका बॉन्ड एंगल. तो सवाल अभी ये है कि इसका बॉन्ड एंगल कम क्यों है. आपको पता है हमने देखा था VSEPR थ्योरी. तो VSEPR थ्योरी में आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है पेज नंबर मेरे ख्याल से 64 पेज पे यहाँ पे जो फिगर दिया है 5.1 में देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया है इन्होंने. लेकिन इन्होंने जो दिया है टेक्स्ट बुक में इट इज गिवन इन अ शॉर्टकट. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अमोनिया इज लेस देन द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ मीथेन. क्योंकि अगर होता है sp3 वाला तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स. बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है सिर्फ वो है 107 डिग्रीज एंड 18 मिनट्स. द रीजन इज दैट तो ये है इधर का लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर. तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है रिपल्शन. यू कैन सी देयर इज रिपल्शन. इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगा रिपल्शन. और ये जो रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो ये रिपल्शन ज्यादा होने के कारण ये जो लोब्स है ये लोब्स आ जाएंगे नीचे की तरफ. तो ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे होना चाहिए था ये 109 डिग्रीज ये रिड्यूस होके हो जाएगा 107 डिग्रीज एंड 18 मिनट्स ओनली. सो हियर वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. व्हाट? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर repulsion is greater than bond pair repulsion. That's why this bond angle is get reduced and it will become 107 degrees and 80 minutes. तो ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे होना चाहिए ये बॉन्ड एंगल देखिए यहाँ पे होता है. I will show with the help of red marker so that you can see carefully. 107 degrees and 18 minutes is the reduced bond angle. जहां तक सवाल है ज्योमेट्री का तो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. I will show the geometry here. It is somewhat like this. Nitrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen here. और यहाँ पे ठीक यहाँ पे है लोन पेयर. ये है इधर लोन पेयर. ठीक है. और ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे है ये है 107 degrees and 18 minutes. This geometry is known as pyramidal. You must be knowing about the pyramid. I mean pyramid shape.
तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्री जो होता है, its geometry is nothing but known as a pyramidal geometry and the bond angle is equal to 107 degrees and 18 minutes. So in this way we can explain the formation of ammonia molecule. ठीक है, तो आप ये जो डायग्राम है इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिए और ये सब कुछ लिख लीजिए, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है डिटेल में. Now, after the formation of ammonia molecule, let's see how the formation of H2O molecule takes place. Okay, as I told you, it is again having the same, sp3 type of hybridization. Okay, so in water molecule, oxygen atom is present at the center. You know that oxygen atom का atomic number होता है यहाँ पे 8. So here 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz. You know that as per the Hertz rule, 1 1 1 and then again you know that atomic number इसका 8 है, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए, फिर 5 6 7 और 8, मतलब यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. So the first step, you know that we have to write about the formation of excited state. Now, first of all, let's write the ground state electronic configuration for oxygen atom. तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है इसमें आएगा 1s, फिर है 2s, then there is 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz. 1 2 1 and 2 1 2 3 and 4. ये है इसका ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. You know that as per the valence bond theory, number of unpaired electrons in oxygen is equal to its valency. Hence, no need of excited state. क्योंकि वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 होता है और यहाँ पे 2 ही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 हमारा जो होता है आपको पता है, ये है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग. मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, here I will say 1 2s orbital and 3 ये 2p orbitals mix up together to form 4 sp3 hybrid s orbitals. So यहां पे मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइज स्टेट को, हाइब्रिडाइज स्टेट. सो 1s का यहां पे वापस कोई पार्ट नहीं होगा,
तो 1s2 because only the electrons present in the valence shell they will participate in the bond formation. तो 1s तो यहाँ पे वैलेंस शेल है नहीं. अभी बात करेंगे हम यहाँ पे, देखो ये 2s वाला और ये तीनों 2p ये हो जाएंगे मिक्सअप, और इनसे देखिए जैसे दिया है वैसे मैंने लिखा है, ठीक है. तो ये इधर फॉर्म हो जाएंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. याद रखिएगा ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं दोनों, ये वापस यहाँ पे है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम. ठीक है. थर्ड स्टेप आपको पता है, इसमें हम लोग लिखते हैं ऑर्बिटल ओरिएंटेशन as well as we have to write here overlap as well. तो ये जो है 4sp3 hybrid orbitals, they will arrange each other in such a way that there should be minimum repulsion between them and maximum stability. तो ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि इनमें कम से कम रिपल्शन हो और ज्यादा रहे इनमें स्टेबिलिटी. सो हियर वी हैव टू मेंशन इट लाइक दिस. You can see now यहाँ पे दो है लोन पेयर्स, प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स. और फिर ये है sp3 हाइब्रिड, ये भी है sp3 हाइब्रिड, ये भी है sp3, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है. डोंट फॉरगेट अभी यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये है ऑक्सीजन का एटम. ठीक है. सो ये है 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो एक्चुअली यू नो दैट अभी यहाँ पे जो होगा ओवरलैप होगा. You know that there is a presence of again 2 H atoms. तो H atom जो होता है उसका होता है configuration 1s1. So यहाँ पे है 2 एटम, तो मैं इधर लिखता हूँ ये 2, और फिर अभी हमको यहाँ पे बताना होगा, शो करना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे होगा ओवरलैप. तो you know that I will show here. We have to mention it properly. कैसे होगा इसका ओवरलैप. ये रहा इनके बीच में होने वाला ओवरलैप. यू नो दैट ये है लोन पेयर, ये भी है लोन पेयर, और ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, और ये बीच वाला ऑक्सीजन है. ठीक है. तो ये लोन पेयर है, और यहाँ पे जो ओवरलैप होगा ये होगा sp3s ओवरलैप. ये जो ओवरलैप यहाँ पे है ये है sp3, और ये है s वाला ओवरलैप. ये भी होता है अलोंग द एक्सिस, तो यहाँ पे फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड. हालांकि यहाँ पे जो 2 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे. तो ये इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं. नाउ हियर वन थिंग आई वांट टू मेंशन, that bond angle and geometry की अगर हम बात करेंगे, तो bond angle in case of water is 104 degrees and 35 minutes. देखिए वैसे देखा जाए तो H2O का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 90 degrees, because ये जो होते हैं ना, that 3 type of orbitals, they are mutually perpendicular to each other. तो उस हिसाब से होना चाहिए था 90 डिग्री का, बट एक्चुअली में है कितना, वो है 104 degrees and 35 minutes. इसका मतलब ये है जब भी हो जाता है ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, means when these orbitals they get oriented, at that time there is a change in the geometry as well as bond angle. तो ये इनका अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना या फिर ओरिएंट करना, इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हुआ है. बॉन्ड एंगल है इसका 104 degrees and 35 minutes. वैसे देखा जाए तो एज आई मेंशन यू, इन केस ऑफ मीथेन
द बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। लेकिन ये तो उससे भी कम है। इवन यू कैन सी द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ वाटर इज स्टिल लेस देन अमोनिया। रीजन इज दैट यहाँ पे है लोन पेयर में रिपल्शन। तो ये है लोन पेयर वाला रिपल्शन, लोन पेयर एंड लोन पेयर वाला रिपल्शन। फिर ये जो मैं दिखा रहा हूं अभी आपको, इसको हम लोग बोलेंगे यस बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इनके बीच में भी इधर रिपल्शन होगा और इधर भी रिपल्शन वही है। देखो ना कौन सा है, आई एम सॉरी, ये है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर वाला रिपल्शन। बॉन्ड पेयर कौन सा, ये है बॉन्ड पेयर और ये है लोन पेयर। इधर भी है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर वाला रिपल्शन। और ये जो दिखाई दे रहा है नीचे, तो इन दोनों में है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन। सो रिमेंबर वन थिंग हियर, इन दिस केस लोन पेयर repulsion is greater than, yes, bond pair lone pair repulsion which is greater than bond pair and bond pair repulsion। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होना मतलब होता है ये और कम होता है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा, दिस बॉन्ड एंगल विल बी रिड्यूस फ्रॉम 109 degrees and 28 minutes. This bond angle will reduce and it will become only 104 degrees and 35 minutes. So reason is that this thing lone pair repulsion यहाँ पे ज्यादा है, फिर ये भी यहाँ पे है। तो ये जो lobes है, ये जो lobes यहाँ पे आएंगे, so these lobes they will get in the other direction। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो अभी कितना है, यहाँ पे होना चाहिए था 109 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स एसपी3 के हिसाब से, लेकिन है कितना वो है 104 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स। अगर हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की, वी कैन से द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या फिर वी कैन से इट्स एंगुलर और एज वी कैन से इट्स अ वी शेप। Let's draw the diagram here properly, geometry का जो डायग्राम है, you can see now here is the presence of oxygen atom, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे वापस है और एक हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। एंड नाउ यू कैन सी ये है यहाँ का लोन पेयर, ये भी है इधर का लोन पेयर, और ये जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, यू नो दैट ये बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 104 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स। ज्योमेट्री वी कैन से इट एज एंगुलर और यू कैन से इट एज वी शेप और यू कैन से इट इवन एज यस डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से आपको इसमें आते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ वाटर, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल in case of ammonia. At the same time, they can also ask you regarding the geometry. So this chapter, I told you, it is also there in the CET. So make sure it's a very easy और आपको ये सब कुछ समझ में आना चाहिए. In case of any doubt, you can ask me. यहाँ पे जो रहेगा हाइड्रोजन, इसका जो स्क्रीन आपको दिखा सकते हैं, ठीक है. So in this way, formation of water molecule takes place. टेक्स्ट बुक पे नहीं दिया है डिटेल में, but for your understanding purpose, I just think that you should know these things, I mean concepts clearly.
सो इस तरीके से अभी हमने देखा इन केस ऑफ water molecule or methane molecule and ammonia molecule, there is the same type of, I mean sp3 type of hybridization process takes place. Now let's see some examples in which we have sp2 hybridization. इसका डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बताया है. Now let's take the example directly. So I will explain here the formation of the molecule also known as acetylene, or you can say here acetylene. से पहले हमें देखना पड़ेगा acetylene is an example of actually sp, I'm sorry, ये यहाँ पे आना चाहिए formation of ethylene molecule. Ethylene is common name and ethyne है इसका IUPAC. Let's see. फॉर्मूला है इसका C2H4. ठीक है. Now you know that what are the steps right now. You can also write the answer in proper manner. So in ethylene molecule there are 2 carbon atoms and 4 hydrogen atoms. You know that what the first step here? Formation of excited state. हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन की, बिकॉज कार्बन इज एट द सेंटर. कार्बन एट द सेंटर. अभी यहाँ पे एक्चुअली है 2 कार्बन एटम्स. देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है. तो कार्बन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो है एटॉमिक मोल्स का 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 1, 1 and 0. तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे उसका ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन. 1s, देन 2s एंड फिर 2px के लिए यहाँ पे, I mean 2p के लिए यहाँ पे आएंगे 3 बॉक्सेस. तो 1s2 मतलब यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 0. सो हो गया 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 1, 1 and 0. ये है इसका ग्राउंड स्टेट. As per the valence bond theory, the valency of carbon is 4, and now you can see there is the presence of only 2 unpaired electron. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s वाला वो यहाँ पर आके जंप करेगा. So here there is a next step will be excited state है. यहाँ पे 1s2 यहाँ पे इसका कोई पार्ट नहीं होगा, लेकिन 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अनकपल होकर सीधा आ जाएगा 2pz में. Yes, so one of the electron from 2s can jump in vacant 2pz orbital. Remember, ऐसा तभी होता है जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू वैलेंसी. वैलेंसी यहाँ पे कार्बन की 4 है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे इलेक्ट्रॉन अनपेड, इसीलिए यहाँ से 2s में से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और वो यहाँ पे वो 2pz में आ गया है. सो नाउ here the first step is over. Okay, now the second step we have to write mixing and recasting. Mixing and recasting of atomic orbitals. Students, now you can see यहाँ पे है sp2 type of,
मतलब यहाँ पे एक ही s होगा और दो होंगे यहाँ पे 2p के ऑर्बिटल्स। तो ये है 2s, ये है 2px, ये है 2py और ये है 2tz। सो 1 2s ऑर्बिटल एंड 2p मतलब कौन सा 2px और 2py वाला, 2p ऑर्बिटल्स मिक्स अप टुगेदर एंड रिकास्ट टू फॉर्म कितने, देखिए एक s और दो p मिक्स हुए हैं, जितने यहां पे होंगे पार्टिसिपेट उतने ही फॉर्म होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहां पे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, दे विल प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे कि यहाँ पे एक s और दो p थे, इसलिए यहाँ पे 3 फॉर्म हुए। sp3 के केस में क्या हुआ था, एक s था और 3 p थे, तो यहाँ पे फॉर्म हुए थे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगा और फिर देखिए इधर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं हाइब्रिडाइज स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट को। तो इधर ये जो 1s है यहाँ पे कोई इसका पार्ट नहीं होगा, बाकी यहाँ जो बच्चे हैं देखिए कुछ से यहाँ पे एक 2s 2px 2py, ये तीनों का होने वाला है यहाँ पे sp2 टाइप ऑफ, I will like 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एक एक। सवाल ये है कि यहाँ पे ये जो बचा है यहाँ पे इसका क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 1 2 3 ये तीन तो यहाँ पे आ गए, लेकिन जो है 2pz वाला ये रहता है अनहाइब्रिडाइज, ये यहाँ पे क्या है अनहाइब्रिडाइज, इसका नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन, वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सो इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज। कौन सा, ये 2pz वाला। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप नंबर 3 में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, स्टेप नंबर 3 विल बी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन एंड ओवरलैप। देखिए अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन की और एक ही कार्बन की, एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं। तो दिस 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ 2 कार्बन एटम्स, डोंट फॉरगेट यहाँ पे है 2 कार्बन एटम जो बीच में आएंगे। तो दिस 3sp2 hybrid orbitals of 2 carbon atoms orient in such a way that there should be minimum repulsion, मैक्सिमम सिमेट्री। देखिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ये जो 3 रहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे तीनों। तो एक्चुअली दे विल एडजस्ट एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो दिस काइंड ऑफ hybridization we are so known as a trigonal hybridization भी कभी कभी हम इसको बोलते हैं, trigonal hybridization भी इसको बोलते हैं, because these 3sp2 hybrid orbitals they orient at the 3 corners of equilateral triangle, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्रीज का।
मैक्सिमम लाइक दिस। तो ये है यहाँ पे sp2 हाइब्रिड, ये है यहाँ पे sp2 हाइब्रिड और ये है यहाँ पे sp2 हाइब्रिड। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ छोटे से लोब, ये है इसका छोटा सा लोब, इसका लोब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और इसका जो लोब है छोटा सा आपको पता है, मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो इधर का बॉन्ड एंगल होगा, द बॉन्ड एंगल हियर विल इक्वल टू 120 डिग्रीज, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये है एक कार्बन है। और जो यहाँ पे है ये 2pz वाला, 2pz वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, जो कि है अनहाइब्रिडाइज, इसे भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा और मैं इसे दिखाता हूं पर्पसली विद अदर टाइप ऑफ पेन ईयर, कुछ इस तरीके से। चलो मैं यहाँ पे दिखा दिया, ये है इधर 2pz वाला, ठीक है। ये मैंने दिखा है एक कार्बन के बारे में। नाउ आई विल शो यू हाउ द ओवरलैप विल टेक प्लेस। मैंने दिखाया है ये जो है just only one carbon atom. Now I will draw the total diagram here on the board. See it carefully. इसके ऊपर भी आपको हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, देखिए ये है sp2, ये भी है यहाँ पे sp2 और ये भी है यहाँ पे sp2 और ये है एक कार्बन एटम का। ठीक इस साइड में ऐसा ही एक कार्बन एटम होगा और इसके भी लोब्स कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए ये भी है sp2, जैसे कि मैंने आपको बोला in case of this ethyne molecule there is presence of here such a kind of here hybridization। तो यहाँ पे जो ओवरलैप हुआ है इसको मैं नाम दूंगा sp2 एंड sp2 टाइप ऑफ ओवरलैप, ठीक है। एक्चुअली ये है पहला कार्बन एटम और ये है दूसरा कार्बन एटम। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है ओवरलैप, दिस ओवरलैप टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो ग्रीन होता है दो कार्बन के होंगे आपने, तो मैं ये जो ग्रीन है ये यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आई विल शो इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखिए ये है 2pz इस कार्बन का और दूसरे कार्बन का यहाँ पे है 2pz। इनके बीच में भी इधर ओवरलैप होता है स्टूडेंट्स। ये जो होते हैं 2pz वाले, आपको याद है मैंने आपको बोला था when the overlap takes place laterally sideways, तो यहाँ पे ये 2pz का भी एक्चुअली होता है ओवरलैप इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा ये होगा प्रोड्यूस पाई बॉन्ड। एक यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ था sp2 के बीच में, इसको मैंने दिखाया है वो है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये है अलोंग द एक्सिस। और यहाँ पे ये जो फॉर्म होगा ये यहाँ पे फॉर्म होगा और वो होगा पाई बॉन्ड। तो अभी ये कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, तो मैं इसे दिखाना चाहूंगा। तो ये है अभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी एक है यहाँ पे सिग्मा और एक है यहाँ पे पाई। अभी जो है H एटम, कितने हैं यहाँ पे H एटम, वो है 4। इधर भी होता है ओवरलैप। अभी देखिए ये ओवरलैप कुछ इस तरीके से होगा। सो आई हैव टू शो हियर दिस ओवरलैप लाइक दिस। ये हाइड्रोजन, इसका नाम होगा sp2 s ओवरलैप। सेम हियर आई विल शो, ये है ओवरलैप, ये है sp2 s ओवरलैप। सेम हियर फॉर दिस also sp2 s overlap, and the same here I have to mention sp2 and s overlap। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी आएगा सिग्मा बॉन्ड, इधर भी आएगा सिग्मा बॉन्ड। सो इस तरीके से अभी यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बन जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
hydrogen, hydrogen. So these are the nothing but 4 different hydrogen atom. तो ये 2 कार्बन बीच में और ये दिख रहे हैं आपको, ये है 4 हाइड्रोजन एटम. तो आपको अगर मैंने सवाल पूछा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन, तो क्या आपका आंसर होगा? देखिए कौन सा बॉन्ड वाले फॉर्म हुआ? सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा. दोनों में से एक बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा. और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है? पाई. सो यू कैन से इन केस ऑफ ethylene molecule there is the presence of 5 sigma bonds and just 1 pi bond. pi bond यहाँ पे जो फॉर्म होगा ये फॉर्म होता है ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैप. यहाँ पे जो भी फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म होता है अलोंग द एक्सिस. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. दरअसल जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड इज मोस्टली होता है सिग्मा बॉन्ड. अगर होता है डबल बॉन्ड तो एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड होता है यहाँ पे पाई. सो वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. सो ओवरऑल दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मॉलिक्यूल वी कैन से. प्रॉपरली बहुत अच्छे से ये लिख के मुझे दिखाना है आप लोगों ने. ओके क्योंकि ये डायग्राम्स आप निकालते कैसे हो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यूर रिप्रेजेंटेशन मैटर्स. ये अगर आपको आएगा तो 4 मार्क्स के आपको कंपलसरी क्वेश्चन इस पे आता है आपको थ्योरी में. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको. और फिलहाल आज हम यहाँ पे रुकेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल सी द नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स. ओके, टिल द टाइम टेक केयर एंड स्टे एट होम.